ઓમ નમો યંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહે સવસાહુણમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ જાયંતિ યોગિનો કામદમ મોક્ષદમ ચેવ ઓમકારાય નમો નમઃ અહોપકાર જિનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જેન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કહાનનો તુજ જ્ઞાન ધ્યાનનો રંગ અમયા દર્શ રહો ઓ શિવ પદ તકત જ સંગ માતા. આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ટીકાકાર આચાર્ય અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ શાસ્ત્રની શરૂઆત કરતા પ્રથમ શ્લોકમાં ઈષ્ટદેવને નમસ્કાર કરી એટલે કે જ્ઞાયક શુદ્ધ સ્વભાવને વંદન કરી તેમજ સિદ્ધ પરમાત્માને વંદન કરી હવે શ્લોક નંબર 2માં સરસ્વતીને વંદન કરે છે. પેજ નંબર 3 શ્લોક 2 બીજા શ્લોકનું હેડિંગ છે સરસ્વતીને વંદન. સરસ્વતીને નમસ્કાર કરે છે. સરસ્વતી એટલે આત્માનો અનુભવ કરતું જ્ઞાન, એટલે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન, એટલે કે સમ્યક જ્ઞાન. એ જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન છે. સરસ્વતીનો બીજો અર્થ છે કેવળ જ્ઞાન. એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોકને જાણનારું જ્ઞાન. જે જ્ઞાન ઉપયોગ સાદી અનંત કાળ જ્ઞાયક સન્મુખ રહેશે અને પ્રતિ સમય જ્ઞાનનું પરિપૂર્ણ સામર્થ વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ કરશે એવું કેવળ જ્ઞાન, સોપર પ્રકાશક જ્ઞાન, એને સરસ્વતી કહેવી છે. સરસ્વતીનો ત્રીજો અર્થ છે જે સમ્યક જ્ઞાની જ્ઞાયક સ્વભાવના સ્વરૂપને જાણીને, એટલે કે નિર્વિકલ્પ દશામાં જ્ઞાયક સ્વભાવના સ્વરૂપને જાણીને સવિકલ્પ દશામાં આવીને
જ્ઞાયક સ્વભાવનું વર્ણન કરે એવું દ્રવ્યશ્રુત એ પણ સરસ્વતીની દેવી છે. ચોથો અર્થ એવો છે કે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણનારા તીર્થંકર પરમાત્મા એમને અતિશયને કારણે દિવ્ય ધ્વનિ છૂટે. એ દિવ્ય ધ્વનિમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું સ્વરૂપ દર્શાવનારી દિવ્ય ધ્વનિ એને સરસ્વતી કેવી છે. લૌકિક શિક્ષણમાં સ્કૂલ કોલેજ ત્યાં સરસ્વતી દેવીનો ફોટો હોય છે. એ સાચી દેવી નથી. જે દેવી તને મોક્ષ માર્ગ ને મોક્ષ પ્રગટાવવામાં નિમિત્ત થાય એને સરસ્વતીની દેવી કહેવાય. હિન્દુ ધર્મ પ્રમાણે જે સરસ્વતીની દેવી એનું ચિત્ર જે બતાવવામાં આવે છે એ સરસ્વતીની દેવી નથી. આચાર્ય ભગવંત સરસ્વતીનું વર્ણન કરીને યથાર્થ સરસ્વતીનું વર્ણન કરીને સરસ્વતી વિશે જે મિથ્યા માન્યતા ચાલી આવે છે એવા પાખંડી મતનું નિરાકરણ એટલે કે પરિહાર કરે છે. હવે જો શ્લોકાર્થમાં છે આ સરસ્વતીની દેવી કેવી છે તો કે અનેકાંતમય મૂર્તિ બ્રેકેટમાં લખ્યું છે. એનો ગુજરાતી ભાષાંતર જેમાં અનેક અંત એટલે કે અનેક ધર્મ છે એવું જે જ્ઞાન એટલે ભાવશ્રુત જ્ઞાન અથવા કેવળ જ્ઞાન અથવા અનેકાંતમય જ્ઞાન. ફરીવાર આત્મા અસ્થિમય વસ્તુ છે, પદાર્થ છે. નિર્વિકલ્પ દશામાં જ્ઞાનીને જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ જણાણું. એ જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ કેવું જણાયું તો કે જ્ઞાયક અનંત ગુણાત્મક છે એટલે કે અનંત શક્તિવાન છે તેમજ અનંત ધર્માત્મક છે. એવું જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ યુગપતપણે જણાણું. એવું જ્ઞાયકનું અનંત ગુણાત્મક સ્વરૂપ, અનંત ધર્માત્મક સ્વરૂપ એને અનેકાંત સ્વરૂપ કહે છે. વસ્તુનું અનેકાંત સ્વરૂપ, જ્ઞાયકનું અનેકાંત સ્વરૂપ કહે છે. હવે એવા જ્ઞાની
સવિકલ્પ દશામાં આવીને અનેકાંતના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે ત્યારે જ્ઞાને તો અનંતે અનંત ગુણ, અનંતે અનંત ધર્મ એક સાથે જાણી લીધા. સવિકલ્પ દશામાં આવ્યા ત્યારે ભેદ પાડીને વર્ણન કર્યું. ભલે ભેદ પાડ્યો પણ જ્ઞાનમાં અભેદ સ્વરૂપ તરવરે છે. જ્ઞાનમાં અભેદ સ્વરૂપ પૂર્વે નિર્વિકલ્પ દશામાં જાણ્યું છે એ જ્ઞાનમાં ઝલકે છે. અભેદના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ઝલકે છે અને એમાંથી એના એક એક ભેદનું વર્ણન કરે છે. તો જ્ઞાનીનું જ્ઞાન અભેદના જ્ઞાનપૂર્વક ભેદરૂપ જ્ઞાન છે. અભેદનું જ્ઞાન એને અનેકાંત કહેવાય. ભેદનું જ્ઞાન પણ અભેદના જ્ઞાનપૂર્વક ભેદનું જ્ઞાન હોય તો એને સમ્યક એકાંત કહેવાય. આવું જ્ઞાન અજ્ઞાનીને હોતું નથી, સાધકને હોય છે. साधक ने હોય છે. हाँ, फिर से हिंदी में पूरी बात. सरस्वती का अर्थ क्या है? तो कि सरस्वती का एक अर्थ है भावश्रुत ज्ञान. उसको आप भावश्रुत ज्ञान कह सकते हो, सम्यक ज्ञान कह सकते हो, निर्विकल्प ज्ञान कह सकते हो, भेद ज्ञान कह सकते हो, स्व पर का यथार्थ ज्ञान कह सकते हो, भेदाभेद का ज्ञान कह सकते हो, युगपद ज्ञान कह सकते हो. ऐसा भावश्रुत ज्ञान साधक को निर्विकल्प दशा के काल में 4 से 12 गुणस्थान तक होता है. तो एक तो भावश्रुत ज्ञान सरस्वती की देवी है, दूसरा केवल ज्ञान, केवली भगवान को, अर्यंत परमात्मा को, तीर्थंकर परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को अपना उपयोग ज्ञायक सन्मुख सादी अनंत काल के लिए हो गया. उसके कारण ज्ञायक में अभेद रूप जो ज्ञान गुण है उसका परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हुआ, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, क्षायी ज्ञान कहते हैं, परिपूर्ण ज्ञान कहते हैं. उसको भी सरस्वती कहना है. तीसरी बात, साधक को निर्विकल्प दशा में जो ज्ञान हुआ और निर्विकल्प दशा छूट गई और सविकल्प दशा में आकर
जिस प्रकार कुंकुंदाचार्य देव, गुरुदेव और माता जी ने उपदेश दिया, वो विनायक को जानकर, विनायक को निर्विकल्प दशा में अनुभव करके सविकल्प दशा में आकर विनायक के स्वरूप का शब्द के माध्यम से जो वर्णन किया, उसको भी सरस्वती कहने में आता है। चौथी बात, केवली भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ। पुण्य के अतिशय में तीर्थंकर परमात्मा को दिव्य ध्वनि छूटी। वो दिव्य ध्वनि में विनायक का स्वरूप यानी स्व का स्वरूप और पर यानी पूरे विश्व का स्वरूप दिव्य ध्वनि में तीर्थंकर परमात्मा ने बताया। ऐसी दिव्य ध्वनि भी सरस्वती की मूर्ति है। अब भावश्रुत ज्ञान जो साधक को प्रकट हुआ, वो जो भावश्रुत ज्ञान तो निर्विकल्प ज्ञान है। निर्विकल्प ज्ञान के काल में विनायक का स्वरूप अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक, उसका अभेद स्वरूप को भी जाना और उसके भेदों को भी जाना और युगपद पने जाना। ऐसे ज्ञान को अनेकांत का ज्ञान कहने में आता है। वो सम्यक अनेकांत का ज्ञान है। ऐसा साधक अनुभूति में से बाहर आया। अनुभूति में तो अभेद पूर्वक भेद का ज्ञान युगपद हो गया था। वो अनुभूति में जो ज्ञान हुआ था, वो सविकल्प दशा में भी वो ज्ञान में उछलता है। लेकिन शब्द के माध्यम से साधक कहेंगे तो वेद से ही बता सकते हैं। इतनी मर्यादा शब्दों की है। लेकिन जो शब्द निकले वो अभेद के भेद को जानकर भेद का वर्णन किया। ऐसे भेद के वर्णन को सम्यक एकांत कहने में आता है। एकांत इसलिए कहा, एक एक भेद का वर्णन चलता है। सम्यक एकांत इसलिए कहा कि अभेद के ज्ञान पूर्वक भेद का ज्ञान है, इसलिए सम्यक एकांत कहा। तो अनेकांत का ज्ञान उसको सरस्वती की मूर्ति कहना है। सम्यक एकांत को भी सरस्वती की मूर्ति कहना है। तो अनुभूति के काल में
सम्यक ज्ञान के काल में आत्मा अनंत गुणात्मक एक यानी एकत्व, अनंत गुणात्मक एक उसका ज्ञान करना, या तो अनंत धर्मात्मक एक उसका ज्ञान करना, ऐसे ज्ञान को सरस्वती की मूर्ति कहना है। ख्याल में आता है? देखो, हम आत्मा शब्द बोले और गुरुदेव बेंसरी आत्मा शब्द बोले, उसमें क्या अंतर है? दोनों ने तो शब्द समान बोला। ज्ञान ते आत्मा, अज्ञानी बोला। गुरुदेव बोले ज्ञान ते आत्मा, बेंसरी ने बोला ज्ञान ते आत्मा। देखो दूसरा दृष्टांत, अज्ञानी ने बोला पानी शीतल है, तो अज्ञानी के ज्ञान में पानी झलकता है, वो शीतल स्वभावी है, ऐसा अनुभव पूर्वक किया है, तो पानी शीतल है, ज्ञान में उछलता भी है और शब्द भी निकले। लेकिन अज्ञानी ने आत्मा शब्द बोला तो आत्मा का अनुभव तो नहीं किया कभी। तो ज्ञान में कुछ झलकेगा नहीं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो अनुभव रहित शब्द निकले, लुखे शब्द निकले कि ज्ञान ते आत्मा। लेकिन गुरुदेव ने बोला ज्ञान ते आत्मा, तो जो ज्ञान नायक में अभेद है, ऐसा अभेद ज्ञायक उसका एक भेद ज्ञान, ऐसा ज्ञान में झलक उठा। बाद में वर्णन किया कि ज्ञान ते आत्मा है। ख्याल में आता है? अब आगे श्लोकार्थ में, જેમાં અનેક અંત છે એવું જે જ્ઞાન, એનું આપણે હમણાં વર્ણન કર્યું, તથા વચનનું વર્ણન કર્યું, અનુભવપૂર્વક વચન નીકળવા, તેમય મૂર્તિ, તો સરસ્વતીની મૂર્તિ કેવી છે કે જે સરસ્વતીમાં, જે જ્ઞાનમાં અનેક ધર્મ છે એવું જે જ્ઞાન, અને સવિકલ દશામાં જે અનુભવમાં આવ્યું હતું એવા વચન, તો જ્ઞાનમય અને વચનમય સરસ્વતીની મૂર્તિ છે। તેમય મૂર્તિ સદાય પ્રકાશ રૂપો। હવે આગળ કે છે કેવી છે તે મૂર્તિ, તો કે જે અનંત ધર્મવાળો છે, જે કહેતા જ્ઞાયક અનંત ધર્માત્મક,
કાલે કહ્યું હતું કે અનેકાંતનું સ્વરૂપ 3 પ્રકારે કહી શકાય. આત્મા અનંત ગુણાત્મક છે એવો એક પ્રકાર, આત્મા અનંત ધર્માત્મક છે એવો બીજો પ્રકાર, અને ત્રીજો પ્રકાર આત્મા સ્વથી છે, પોતે પોતાથી છે એને અસ્થિ કહેવાય, અને પર રૂપે નથી એ નાસ્તિ કહેવાય. તો એને અસ્થિ નાસ્તિ અનેકાંત કહેવાય. એવા 3 સ્વરૂપથી અનેકાંતનું વર્ણન થઈ શકે. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવનું જ્ઞાન આ સમયસાર માટે પહેલી ગાથાથી 415 ગાથા સુધી એમનું જ્ઞાન આર પાર છે. આર પાર છે એટલે 1 થી 415 ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન નું હાર્દ શું છે એ અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ બરાબર જાણે છે. તો કે આવું કઈ રીતે કહી શકાય? તો કે બીજા શ્લોકમાં જે અનેકાંતનું સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવંતે બતાવ્યું એ સંક્ષિપ્તમાં બતાવ્યું. એનો વિસ્તાર કરશે પરિશિષ્ટમાં. પરિશિષ્ટ અધિકાર ક્યારે મૂક્યો, ક્યાં મૂક્યો? તો કે 415 ગાથા પૂરી થઈ પછી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે સ્પેશિયલ એક અધિકાર લખ્યો, પરિશિષ્ટ અધિકાર. પરિશિષ્ટ અધિકારમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે બે વિષયને ચર્ચિત કર્યા. એક અનેકાંતનું સ્વરૂપ અને બીજું ઉપાય ઉપેય ભાવ. એ અનેકાંતનું સ્વરૂપ આ બીજા શ્લોક માંથી આચાર્ય ભગવાન વિસ્તારથી પરિશિષ્ટમાં કહેવાના છે. પરિશિષ્ટનો અર્થ આચાર્ય ભગવંતે એવો કર્યો કે કુંકુંદાચાર્ય દેવે સમયસારમાં જે કહ્યું છે એ હાર્દને હું કાયમ રાખીને કહીશ, અને એમને જે નથી કહ્યું એ પણ એમના હાર્દને કાયમ રાખીને કહીશ. કુંકુંદાચાર્ય દેવે અનેકાંતની ચર્ચા ન કરી. કુંકુંદાચાર્ય દેવે આખા શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનતે આત્મા, જ્ઞાનતે આત્મા, જ્ઞાનતે આત્મા કહ્યું. તો અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવને એમ થયું કે કોઈ એકાંતે એવું ન પકડી લે, એકાંતે એવું ગ્રહણ ન કરી લે
કે આત્મામાં માત્ર એક જ્ઞાન ગુણ જ છે ને બીજા ગુણો નથી. આત્મામાં તો અનંત ગુણ છે. તો આચાર્ય ભગવંતે પરિશિષ્ટમાં અનેકાંતનું સ્વરૂપ બે પ્રકારે ચર્ચા કરી છે. આત્મા અનંત ગુણાત્મક છે, આત્મા અનંત ધર્માત્મક છે. એ પરિશિષ્ટમાં ખોલશે. 415 ગાથા પૂરી થાય ત્યાં તો આપણે બીજા નંબરનો શ્લોક ભૂલી ગયા હોય કે બીજા શ્લોકમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે આ વાત કરી હતી. તો કે માર્મિક વાત તું ભૂલી જાતો એ ન ચાલે. એટલે અત્યારથી આપણે અહીંયા ધ્યાન દોરીએ છીએ કે આની વિશેષ ચર્ચા परिशिष्ट करसे. फिर से हिंदी में आचार्य भगवान ने दूसरे श्लोक में सरस्वती को वंदन तो किया, साथ में अनेकांत का स्वरूप भी बताया. अनेकांत का स्वरूप अमृतचंद्राचार्य देव ने दूसरे श्लोक में संक्षिप्त में बताया. उसका विस्तार करने के लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने कुनकुंदाचार्य देव की 1 से 415 गाथा 9 अधिकार पूर्ण होने के बाद परिशिष्ट रखा, परिशिष्ट अधिकार लिखा. परिशिष्ट का अर्थ अमृतचंद्राचार्य देव ने ऐसा किया कि कुनकुंदाचार्य देव ने 9 अधिकार 415 गाथा में जो कहा है उसका हार्द कायम रख के मैं विशेष कहूँगा, और उसने जो नहीं कहा है वो भी उसका हार्द कायम रख के कहूँगा. तो कुनकुंदाचार्य देव ने जो कहा है उसके प्रति अमृतचंद्राचार्य देव ने पूर्ण विवेक रखकर अपनी कुछ अधिकता नहीं बताते हुए कुनकुंदाचार्य देव के प्रति भक्ति भाव रखकर परिशिष्ट का आलेखन किया. परिशिष्ट में अमृतचंद्राचार्य देव ने 2 अधिकार 2 बातें बताई. एक अनेकांत का स्वरूप और दूसरा उपाय उपेय भाव. साधन साध्य भाव. अनेकांत का स्वरूप की चर्चा परिशिष्ट में 2 प्रकार से बताई. प्रथम बताया आत्मा अनंत धर्मात्मक है.
दूसरा बताया आत्मा अनंत शक्तिवान है। शक्ति का अर्थ गुण किया है, तो अनंत गुणात्मक है। तो दूसरे श्लोक में से परिशिष्ट का एक विभाग अनेकांत का स्वरूप अमृतचंद्राचार्य देव विस्तार से वहां खोलेंगे। अब देखो, परिशिष्ट आएगा तब ये भूल मत जाना कि दूसरे श्लोक में अनेकांत का स्वरूप की चर्चा हुई थी। ये मालूम तब पड़ता है कि आपको पूर्ण शास्त्र कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। ये बात पहले से आपको मालूम हो तब मालूम पड़ता है कि परिशिष्ट क्यों रखा और वह कहाँ से खोला उसने। तो आपके ज्ञान में 9 अधिकार 415 गाथा का भाव उसका तात्पर्य आपके ज्ञान में झलकता रहना चाहिए। जो भूमिका के रूप में हमने बताया सब कुछ, उसका प्रयोग बार बार होगा। ये बात आपको भूलना नहीं है। अब देखो आगे, वो सरस्वती की मूर्ति कैसी है? तो देखो, वो अनंत धर्म वाला है। ये अनंत धर्म वाला तो विनायक अनंत धर्मात्मक है। जिस प्रकार विनायक अनंत धर्मात्मक है, उसी प्रकार सभी द्रव्य अनंत धर्मात्मक है। जिस प्रकार विनायक अनंत शक्तिवान है कि अनंत गुणात्मक है, उसी प्रकार सभी द्रव्य भी अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तिवान है। तो अनेकांत के स्वरूप में पहली बात बताई कि वो अनंत धर्म वाला है। दूसरी बात बताई, जो परद्रव्यों से और परद्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न, क्या कहा? और परद्रव्य के निमित्त से होते हुए विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। क्या कहा? कि विनायक कैसा है? अनंत धर्मात्मक विनायक कैसा है? परद्रव्यों से भिन्न। जो हमने 14वीं गाथा स्पेशल बताई थी आपको, उसमें क्या कहा था? अबध स्पृष्ट। तो विनायक ने परद्रव्य का कभी स्पर्श नहीं किया है। उसका मतलब विनायक परद्रव्य से भिन्न है। परद्रव्य के गुण पर्याय से भिन्न। परद्रव्य से भिन्न है तो उसके गुण पर्याय से भी भिन्न ही है। आगे, परद्रव्य के निमित्त से यानी कर्म के उदय से जो संयोगी भाव उत्पन्न होता है, 14वीं गाथा, उसमें छठी बात बताई थी हमने कि कर्म के उदय में जुड़ने से जो
राग द्वेष उत्पन्न होता है, उससे रहित ज्ञायक देखो, अमृतचंद्राचार्य देव, कुंकुंदाचार्य देव क्या बताना चाहते हैं, उसकी बात उसने अभी से बताना शुरू कर दिया। हमने क्या बताया था कि समय का एक अर्थ है छह द्रव्य, छह द्रव्यों में सारभूत जीव। तो आपको समय सार जीव की मुख्यता से पढ़ना है। एक बात ये बताई थी। दूसरी बात बताई थी कि समय का अर्थ जीव, तो जीव में सारभूत जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव ज्ञायक। तो देखो यहाँ क्या बताया कि एकाकार, ज्ञायक एकाकार है, उसने राग द्वेष का स्पर्श नहीं किया। कर्म क्या उदय आया, यानी कर्म का निमित्तपना मिला, उसमें जुड़कर जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, यानी विकारी परिणाम उत्पन्न हुए, उससे कथनचित भिन्न विकारी भाव से भिन्न ज्ञायक है। विकारी भाव से भिन्न एकाकार ज्ञायक है। ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को वो मूर्ति, यानी सरस्वती की मूर्ति अवलोकन करती है, यानी अनुभव करती है। क्या कहा? आत्म तत्व कहो, ज्ञायक कहो, एकाकार तत्व कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, पारिणामिक भाव कहो, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव कहो, वो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव सजातीय एक जाति वाले, एक जाति वाले दूसरे जीव भी अनंत है, ऐसे अनंत जीवों से भी भिन्न मेरा निज स्वरूप है। और विजातीय से भिन्न, विजातीय यानी अजीव द्रव्यों, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उससे भी भिन्न मेरा ज्ञायक स्वभाव है। वो ज्ञायक स्वभाव मेरा निज स्वरूप है। वो निज स्वरूप को जानने वाला, अवलोकन करना यानी जानने वाला, वो तो भावस्वरूप ज्ञान है। साधक के लिए भावस्वरूप ज्ञान है, अर्यन सिद्ध के लिए केवल ज्ञान है। तो श्रावक का भावस्वरूप ज्ञान, अर्यंत सिद्ध का केवल ज्ञान, वो सरस्वती की मूर्ति है। किस ज्ञान को सरस्वती कहे? क्योंकि जिस ज्ञान से स्वपर के बीच में भेद ज्ञान हो जाए, स्वभाव और विभाव के बीच में भेद ज्ञान हो जाए, जो ज्ञान राग
द्वेष की मलिनता से भिन्न हो जाए, ऐसा ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। जिस ज्ञान का फल मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्रगटता हो जाए, वो ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। किस ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है? जो ज्ञान नायक के सन्मुख हो जाए, जो ज्ञान के अवलोकन में नायक अनंत धर्मात्मक एकाकार एक स्वरूप अनंत शक्ति का पिंड, ऐसा नायक उसके स्वरूप को जो जान ले, वो ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। सरस्वती इसको कहे। देखो भावार्थ, यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप नमस्कार किया है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करते समय सरस्वती को वंदन क्यों किया? तो कि सरस्वती विनायक के सन्मुख हो गई है। विनायक को ज्ञान में समा लिया, विनायक के स्वरूप को जैसा है वैसा निर्विकल्प दशा में जान लिया, उसका भेद स्वरूप भी जान लिया। उसका भेद स्वरूप जाना, उसी समय दर्शन मोह और चारित्र मोह में अनंतानुबंधी कसाई का नाश हो गया। इसलिए ये ज्ञान वंदनीय है, नमस्कार करने जैसा है। अब आगे नेक्स्ट पेज नंबर 4। सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है, वो यथार्थ नहीं है। जो लौकिक शिक्षण में सरस्वती स्कूल कॉलेजों में सरस्वती की मूर्ति बनाई जाती है, वो सरस्वती की मूर्ति नहीं है। वो तो लौकिक ज्ञान, संसार की ओर ले जाने वाला ज्ञान। तो क्या कहा कि सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है, वो यथार्थ नहीं है। इसलिए यहाँ जो यथार्थ सरस्वती है उसका वर्णन किया है। अब आगे, जे सम्यक ज्ञान है तेज सरस्वतीनी सत्यार्थ मूर्ति है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान को सरस्वती की मूर्ति कहा। सम्यक ज्ञान का अनेक नाम है। भावस्वरूप ज्ञान कहो, अनुभूति के समय जो ज्ञान प्रकटता है उसको सरस्वती कहो, युगपत जानने वाले ज्ञान को सरस्वती कहो, उसको सम्यक ज्ञान कहो। जैसा है वैसा ज्ञायक का स्वरूप जाना, इसलिए सम्यक ज्ञान, इसलिए सम्यक ज्ञान। अब आगे, उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है,
उसका अर्थ केवल ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा, केवल ज्ञान को भी सरस्वती कहा, कि जिसमें सर्व पदार्थों प्रत्यक्ष भासते हैं यानी जानने में आता है। वो अनंत धर्मों सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखते हैं यानी जानते हैं। प्रत्यक्ष जानते हैं। इसलिए वो सरस्वती की मूर्ति है। देखो, तो सरस्वती की मूर्ति, एक सम्यक ज्ञान, दूसरा केवल ज्ञान, ये दोनों निर्विकल्प ज्ञान है। अब सविकल्प ज्ञान की बात बताते हैं। और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वो भी सरस्वती की मूर्ति है। ज्ञानी का वचन किस तरफ ले जाता है? ज्ञायक की ओर ले जाता है। ज्ञानी का वचन वेद के द्वारा अभेद तक ले जाता है। तो वेद के द्वारा अभेद तो अनेकांत स्वरूप है। तो जो वचन वेद के द्वारा अभेद तक ले जाए, वो वचन भी सरस्वती है। क्योंकि वचनों द्वारा अनेक यानी अनंत धर्मवाળા आत्माने ते बतावे छे। क्या कहा कि शब्द द्वारा भी अनंत धर्मात्मक आत्मा यानी ज्ञायक को दर्शाता है। इस प्रकार सर्व पदार्थों का तत्वों को जनाने वाला ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमय सरस्वती की मूर्ति है। तो निर्विकल्प ज्ञान ने तो वस्तु के स्वरूप का अनुभव कर लिया कि अनेकांत स्वरूप है, और वचन ने वस्तु का जो अनेकांत स्वरूप है उसका अंगुली निर्देश किया। इस प्रकार सर्व पदार्थों का तत्वों को जनाने वाला ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसलिए सरस्वती का नाम, जो सरस्वती शब्द है, उसके लिए अनेक प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी, इत्यादि बहुत से प्रकार से कहने में आता है। ये सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मी को स्याद पद से एक धर्मी में अविरोधपने साधता है, इसलिए वो सत्यार्थ है। लेकिन अन्यवादी का अर्थ है पाखंड मत वाले, एकांत मत वाले।
सरस्वती की मूर्ति को दूसरी तरीके से स्थापित करते हैं। वो सरस्वती पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। तो जो पाखंड मत, एकांत मत, उसने जो सरस्वती का स्वरूप बताया, उसका निषेध, उसका निराकरण आचार्य भगवान ने कहा कि अन्य मत में जिसको सरस्वती कहता है उसको मानेगा तो ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। कोई किसी को प्रश्न होता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा, तो उसमें अनंत धर्मों कौन कौन से हैं? उसका उत्तर सतपना। यहाँ धर्म का अर्थ किया है गुण। तो वस्तु सत है, सत यानी अस्तित्वमयी है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी हयाती है, उसकी विद्यमानता है। दूसरा वस्तुपन। वस्तुपना का दो अर्थ। वस्तुत्व गुण कहो तो सभी पदार्थों को अर्थ क्रिया है। वस्तु का दूसरा अर्थ द्रव्य में अनंत गुण बसे हुए हैं, उसको भी वस्तु कहते हैं।